Hello student, today I am going to read the book Footprint Without Feet. This is second book of your course. As you know, first book name is First Flight and second book name is Footprint Without Feet. So today's chapter name is Footprint Without Feet as well as the book name is Footprint Without Feet. Chapter number 5. In this chapter we will read some paragraph and you will see in the book. I am going to read the chapter. All the students will open the book. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the step of a house in the middle of London? And where was the man? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. Further footprints followed one after another, descending the steps and the four grazing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impression became fainter and fainter, and at last disappeared altogether. The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. Though it also remained as solid as glass, brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until this happened to step in some mud and left footprint as he walked. He escaped easily through from the boys who followed his footprints in London. But his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. Closing time arrived, and as soon as the door was shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes, soon with shoes, an overcoat, and a wide-brimmed hat. He became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweet and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. This time he decided to try the stock of the theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders.
Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. Now I am going to explain the para for you. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. The two boys started in a surprise. दो लड़के बड़े सरप्राइज में थे. स्टार्टेड इन सरप्राइज, उनको आश्चर्य होना शुरू हो गया. एट अ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, जब उन्होंने देखा ताज़े इम्प्रिंट्स यानी निशान, मडी इम्प्रिंट्स यानी कि मिट्टी के, यानी कोई अगर मिट्टी में चला जाए, ऑफ अ बेयर फीट, नंगे पाँव अगर आप मिट्टी में चले जाओ फिर चलोगे तो आपके पैरों के निशान प्रिंट होते जाते हैं ना लैंड पर, ज़मीन पर. उसी तरह से दो लड़कों ने ताज़े पैरों के जो मिट्टी में पैर गए होंगे उसके निशान जो है सड़क पर देखे. व्हाट वाज अ बेयर फुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस. और उन्होंने कहा कि ये घर के बाहर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, यानी कोई ना कोई तो आया है जिसके पैरों के निशान जो हैं घर के सामने या सड़क पर लगे हुए हैं. इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन शहर के बीच में. एंड वेयर वाज द मैन, लेकिन ये आदमी गया तो गया कहाँ जिसके पैरों के ये निशान. एट द गेज्ड, अब इस चीज़ का पता करने के लिए वे अचंभे में हैं, अचंभित हैं. अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज़, तो उनकी नज़रों के सामने एक बहुत ही अजब और अजीब चीज़ सामने प्रकट हुई. अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. उन्होंने देखा कि उनके सामने ही नए पैरों के निशान बनते जा रहे हैं एक के बाद एक. फर्दर फुटप्रिंट फॉलोड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा निशान बनता जा रहा है जैसे कोई चलता जा रहा हो. डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, आगे बढ़ता जा रहा है सड़क पर और जो है वो पैरों के निशान इम्प्रिंट होते जा रहे हैं. द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर. और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है कि किसके पैरों के निशान बन रहे हैं, तो लड़कों ने उन पैरों के निशानों का पीछा किया. फॉलोड फैसिनेटेड, ये आकर्षण उनको अचंभित कर रहा था. अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर, जब तक कि वो मिट्टी वाले पैरों के निशान फेंटर यानी धुंधले नहीं हो गए. एंड फेंटर, और धुंधले होते चले गए. एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और लास्ट में आखिरकार डिसअपियर्ड, गायब हो गए, दिखाई नहीं दे रहे. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. अब इस तरह की मिस्ट्री का एक्सप्लेन कर पाना सिंपल नहीं है. किस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे कि किसी के पैरों के निशान है और वो दिखाई नहीं दे रहा, आप क्या एक्सप्लेन करोगे. द वेविल्डर बॉयज़ हैड बीन फॉलोड अ साइंटिस्ट, ये लड़के जो है एक वैज्ञानिक का पीछा कर चुके थे. वो जानते थे एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हु, उस वैज्ञानिक का पीछे जिसका पैरों के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे. फॉलोड अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, उस एक ऐसे वैज्ञानिक को जानते थे जिसने अभी अभी क्या किया था, हैड डिस्कवर्ड, उसने एक आविष्कार किया था. हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, यानी उसे कोई देख नहीं सकता, आप हैं या मैं हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ का यूज़ कर लूँ जिससे मैं दिखाई ना दूँ. मेरी आवाज़ तो आप तक आ रही है, मेरे द्वारा किए गए कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ. ग्रिफिन द साइंटिस्ट, और वो साइंटिस्ट कौन था, वो साइंटिस्ट था ग्रिफिन. हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जो एक के बाद एक जो है एक्सपेरिमेंट, एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता जाता था. टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, ये बात को प्रूव करने के लिए कि मनुष्य की जो बॉडी है वो अदृश्य हो सकती है, इनविजिबल हो सकती है, जिसको कोई देख नहीं सकता. तो ग्रिफिन नाम का जो वैज्ञानिक था, जो साइंटिस्ट था, उसको दो लड़के जानते थे कि एक वैज्ञानिक है जो अभी हाल ही में, जो करीब में ही एक आविष्कार कर चुका है या आविष्कार करने में लगा रहता है बार बार, और जो है
इस बात को प्रूव करने के लिए कि मनुष्य की बॉडी भी अदृश्य हो सकती है और उसे कोई देख नहीं सकता। फाइनली ही सॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, आखिरकार उसने जो है एक निश्चित जो ड्रग्स होते हैं जो खाए जाते हैं, यानी कि इनविजिबल होने के लिए, जो साइंटिस्ट जानते होंगे ऐसा ड्रग्स होता भी है या नहीं होता है, इसके बारे में मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। तो सॉलोड सर्टेन रेयर्स ड्रग्स, तो गुटक गया या निगल गया या बिल्कुल उसको अंदर पी गया रेयर ड्रग्स, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, और उसकी बॉडी क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट, जिसके विच यू कैन सीन थ्रू, जिसके आप पार देख सकते हो, इट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। किस तरह से ट्रांसपेरेंट, जैसे कि कांच की कोई शीट्स हो, पूरा कांच हो। दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन वो कांच की तरह ही मजबूत रहेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है ना कांच, लेकिन मजबूत होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, वो जो था गिरफिन, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। गिरफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन लॉलेस पर्सन था, कानून को ज़्यादा फॉलो नहीं करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, इसका मालिक इसे पसंद नहीं करता था, ये जहाँ रहते थे, एंड ट्राई टू रिजेक्ट हिम, और हमेशा ऐसे निकालने की कोशिश करता था कि ये भाग जाए, उसका कमरा छोड़ दे, खाली कर दे। इन रिवेंज गिरफिन सेट फायर टू द हाउस, तो बदले में गिरफिन ने क्या किया, घर को आग लगा दी। इनका मालिक इन्हें पसंद नहीं करता था और चाहता था कि घर से बाहर रहें, इनको घर से निकाल दिया जाए। तो इस कोशिश में इनका मालिक लगा रहता था। तो उसके बदले में रिवेंज, बदला लेने के लिए गिरफिन ने उसके घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, कि वो घर से बाहर निकल जाएगा और उसको कोई देख भी नहीं पाएगा। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए अगर आप कपड़े पहने हो तो आपके कपड़े तो दिखते रहेंगे, कपड़े थोड़ी ना इनविजिबल होंगे, बॉडी इनविजिबल होगी, तो आपको कपड़े उतारने होंगे, पूरे कपड़े उतारने होंगे, तो आप इनविजिबल हो जाओगे। दस इट वाज दैट ही बिकेम अ होमलेस वंडरर, तो इस वजह से, इस तरह से वो क्या हो गया, होमलेस वंडरर हो गया, सड़कों पे घूमने वाला, यहाँ वहाँ रोम करने वाला एक व्यक्ति बन गया। विदाउट क्लॉथ्स, जिसके पास कोई कपड़े नहीं है, विदाउट मनी, जिसके पास कोई पैसे नहीं है, एंड क्वाइट इनविजिबल, और कोई उसे देख भी नहीं सकता है। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन समर, जब तक नहीं देख सकता है जब तक कि उसके पैर जो हैं मिट्टी में ना चले जाएं, गीली मिट्टी में, और उसके इम्प्रिंट जो हैं चारों तरफ सड़क पर ना आ जाएं। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक्ड, और जब वो चलेगा तो उसके पैरों के निशान पड़ेंगे। तो इसी टॉपिक के ऊपर, फुटप्रिंट के ऊपर ही इस टॉपिक का नाम है, इस बुक का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, बिना पैरों के, यानी कोई दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी उसके पैरों के फुटप्रिंट यानी पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprint in London. He escaped easily enough, वो आराम से escape हो जाता था, बच जाता था, भाग जाता था। फ्रॉम द बॉयज़, उन लड़कों से भाग गया, हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट इन लंदन, जो लंदन में वो लड़के, शुरू में मैंने आपको बताया था, जो लड़के उसका पीछा कर रहे थे, आसानी से उन लड़कों से वो भाग गया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, उसकी जो घटनाएं थी, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ, लेकिन उसने जो था, ही हैड चूजन अ बैड टाइम, एक गलत समय चुन लिया था सड़कों पे घूमने के लिए। इस वर्ष का, ईयर का सबसे बैड टाइम चुन लिया था, अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों के लंदन शहर में घूमने का गलत समय था। इट वाज मिड विंटर, ये सर्द और ठंडी का समय था, विंटर की बिल्कुल बीचों बीच का समय था। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत, बिटरली कोल्ड का मतलब होता है बहुत अत्यधिक ठंडी थी, जैसा कि आप लोग जानते हो विंटर में जो हवाएं चलती हैं, और ये यूरोप कॉन्टिनेंट लंदन की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों के वो कुछ नहीं कर सकता था, इतनी ठंडी होती। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म, तो उसने सोचा, इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, सड़कों पे घूमने के बजाय मैं क्या करूं, ही डिसाइड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, जो लंदन का जो स्टोर है, जो होते हैं ना ग्रोसरी स्टोर और भी जो मॉल वगैरह होते हैं, फॉर वार्मथ, कि अपने आप को गर्म रखने के लिए मुझे कोई ना कोई मॉल में या कोई स्टोर में जाना होगा। क्लोजिंग टाइम अराइव,
मॉल के और स्टोर के बंद होने का समय आ गया। एंड एज सून एज द डोर वर शट, और जब वो दरवाजे बंद हो रहे थे, गिरफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। तो गिरफिन चाहता था कि उसके पैसे भी खर्च ना हो, कोई उसे देख भी ना पाए, वो कपड़ों का भी मज़ा ले ले और वो खाने का भी मज़ा ले ले। तो वो सोच रहा था कि अपने आप को कैसे उस मज़े को दिलाया जाए, अंदर जाया जाए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, तो वो अंदर चला जाता अपने आप को और अपने आप को एडजस्ट कर पाता है कि किस तरह से जो है वो अंदर कपड़ों का यूज़ कर सकेगा और खाना खा सकेगा। जब मॉल के बंद होने का टाइम था, किसी ने उसको नोटिस भी नहीं किया वो कब पहुंचा। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, सारे बॉक्सेस को तोड़ दिया, जो भी रैप चीज़ें थी जो लपटी हुई थी, यानी जो पैक्ड आइटम थे, उन सारी चीज़ों को तोड़ दिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ्स, और अपने आप को गर्म कपड़ों में फिट कर लिया। तो बॉक्सेस को तोड़ने लगा और जो रैपर थे उनको खोलने लगा और अपने आप को क्या किया, वार्म क्लॉथ्स, अपने आप को वार्म करने लगा उन गर्म कपड़ों से। सून विथ शूज़ एंड ओवर कोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, जल्दी उसने जूते भी पहने। अब वो मॉल के अंदर है, वो कुछ भी करे, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, कितना भी खाना खाए, कितने भी कपड़े पहने, बदल बदल के पहने, चेंज करता रहे। विथ शूज़ एंड ओवर कोट, तो उसने शूज़ भी पहन लिए, ओवर कोट भी पहन लिया, वाइड ब्रिम्ड हैट, एक बढ़िया सा गोल टोपी भी लगा ली। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, जब उसने पूरे कपड़े पहन लिए तो दिख सकता था, कपड़े उसके दिख सकते थे पूरी तरीके से, यानी कि पीछे से अगर कोई देखे तो समझ नहीं पाएगा कि पर्सन है या नहीं है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की जब वो किचन में गया, ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, वहाँ पर उसने पाया यहाँ पे गोश्त रखा हुआ है, मीट रखा हुआ है, एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी बढ़िया रखी हुई है। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट, तो खाया उसने उस खाने को, उसके बाद मिठाई भी खाई विथ स्वीट्स, एंड वाइन टेकन, उसके बाद शराब भी पी फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट, आखिरकार जो रज़ाइयों का जो ढेर लगा हुआ था वहीं पर अपने आप को सेटल किया और वहीं पर वो सो गया। इफ़ ओनली गिरफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन द गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, गिरफिन का अच्छा समय जब हो सकता था जब गिरफिन जो है अपने आप को समय से पहले उठा पाता और स्टोर खुलने से पहले उठा के और बाहर निकल सकता था। इफ़ ओनली गिरफिन हैड मैनेज टू वेक अप, अपने आप को यदि वो उठा ले तो उसके लिए बढ़िया समय होगा। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप, लेकिन वो अपने आप को समय पर नहीं उठा पाया। अनटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसके उठने से पहले स्टोर का जो असिस्टेंट था वो वहाँ पर पहुँच चुका था पहले से ही। व्हेन ही सा अ कपल ऑफ देम, लेकिन जब उन लोगों ने वहाँ पर देखा अप्रोचिंग, उसने देखा कि लोग वहाँ पर इकट्ठे होने लगे हैं। गिरफिन ने देखा कि लोग जब उसकी आँख खुली तो लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हुए हैं, यानी कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। ही पैनिक्ड एंड बिगिन टू रन, तो उसको घबराहट हुई और वो दौड़ने लगा, भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, सब लोगों ने उसका पीछा भी किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, लेकिन आखिरकार अंत में वो भाग निकला। ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, कैसे भाग निकला, ऐसे नहीं अचानक से भाग निकला। उसके पास जो आइडिया था कि वो कैसे डिसअपियर हो सकता है, कैसे गायब हो सकता है, कैसे गायब हो सकता था, यदि वो अपने कपड़ों को उतार दे। तो जब वो अपने कपड़ों को उतार देगा तो उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी। तो वो कैसे गायब हो जाएगा, जब अपने वो सारे कपड़ों को उतार देगा तो उसकी बॉडी पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, तो उसने धीरे धीरे करके अपने वन बाई वन सारे कपड़ों को उतार दिया। जो उसने कैप लगाया हुआ था, जो कपड़े उसने पहने हुए थे, जो शूज़ उसने पहने हुए थे, वो सब उसने उतार दिए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, तो एक बार फिर से ये क्या हो गया, इनविजिबल हो गया और अब उसे कोई देख भी नहीं सकता था। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन इस ठंडी में, जनवरी की जो एयर है ठंडी में बिल्कुल नेक्ड है, विदाउट क्लॉथेस है और उसको बड़ी सर्दी लग रही होगी। द टाइम ही डिसाइड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, अब ये जो समय था जब उसने फैसला किया कि क्यों ना ट्राई करते हैं टू स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथेस
तो एक और कंपनी में, थेरेटिकल कंपनी में गया। थेरेटिकल कंपनी से मतलब है थिएटर जहाँ पर कपड़े चेंज करके बहुत सारे एक्ट किए जाते हैं, अभिनय किए जाते हैं, वो थिएटर कहलाता है। आज के टाइम पे कम होते हैं, पहले के टाइम पे जब मूवीज़ और फिल्म नहीं बना करती थी तब ये थिएटर हुआ करते थे, और थिएटर्स में चेंजेबल जो रूम है वहाँ से उसको कपड़े मिल सकते थे। तो उसने सोचा थेरेटिकल कंपनी में जाते हैं, होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ, ये सोचकर कि सब कपड़े ही नहीं मिलेंगे बट समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, बल्कि वो चीज़ भी मिल जाएगी जो उसे छिपा लेगी। अब हिज शोल्डर, उसके शोल्डर के ऊपर जो गर्दन है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ मिल जाएगी, वो लपेट लेगा और वो छिप जाएगा। शिवरिंग विथ कोल्ड, जैसे हम लोग जो है मफलर को बांधते हैं ना गले में जब सर्दी लगती है ठंडी में, तो हम लोग सब छिपाते हैं अपना। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू डॉरी लेन, तो कांपते हुए जल्दी में डॉरी लेन के आसपास पहुंचा। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि थिएटर की दुनिया का एक सेंटर था, उसका नाम था डॉरी लेन। जैसे आपने मुंबई में सुना होगा फिल्म सिटी है, खंडाला है, या बहुत सारे जगह हैं जिनका नाम फेमस होता है फिल्म की शूटिंग करने के लिए, उसी तरह से डॉरी लेन वहाँ पे लंदन में फेमस था। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, आखिरकार उसको एक ऐसी दुकान मिल गई जहाँ पे वो जा सकता था। ही मेड हिज वे इनविजिबल, तो वो तो इनविजिबल था ही, वो आगे बढ़ता रहा। अप स्टेयर एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस, आगे ऊपर गया, अप स्टेयर सीलिंगों से ऊपर गया, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस, और थोड़ी देर बाद देखा बैंडेजेस, यानी जो पट्टियाँ होती हैं, जब हमें कोई चोट लग जाती है तो हम पट्टी लपेटते हैं ना, उस टाइप की। तो बियरिंग बैंडेजेस, पूरे में बैंडेजेस पहने हुए, राउंड हिज फोरहेड, अपने सर के चारों तरफ। डार्क ग्लासेस, और गहरे रंग के क्या पहन लिया, चश्मा पहन लिया डार्क कलर का। फॉल्स नोज, नकली एक नाक लगा ली। बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड लार्ज हेड, एक बड़ा सा हेड लगा लिया, और कपड़े पहन लिए ढीले ढाले। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ताकि उसे कोई देख ना सके और बच के निकल सके वो। ही कलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, तो शॉपकीपर ने पीछे ही bushy and large head to escape without being seen. He closely attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. हाँ, तो जिस दुकान से या कहीं से उसने जो बैंडेज लगाए थे अपने चेहरे को ढक लिया ताकि लोगों को लगे ये डाकू है, तो उसने दुकानदार के ऊपर हमला कर दिया, रॉब्ड, उसको लूट लिया, और उसके पास जो पैसे थे उसको भी लूट लिया, और शॉपकीपर के ऊपर हमला करके वहाँ से जो है एस्केप हो गया, यानी कि बच निकला। दैट्स एंड ऑफ द चैप्टर, that's the end of the lecture today, chapter number 5 for Freedom Without Feet. The remaining portion will continue in the next video in part number 2. I hope you like the video. If you have a problem, comment in the comment box. We will meet in the next video. Thank you very much.